Hello, Khamagani, Bon Aprimidi. I have received lots of comment on my channel and many of the students have requested me to teach in both the languages. So from today onwards, I will teach in both the languages. Now let's see what I have brought for you in this video. Today we will discuss about the word COVID-19. The word that all of you are familiar with it. The word that has changed our lives. COVID-19 is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by severe acute respiratory syndrome. कोरोना वायरस रोग एक महामारी के रूप में पूरे देश में फैल चुका है, जो एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के कारण उत्पन्न हुआ है। इसकी पहली पहचान वुहान, चाइना में हुई थी। WHO has also declared this outbreak as a public health emergency of international concern on 30th Jan and pandemic on 11th March. Now, we will discuss what do you mean by epidemic. Is epidemic can be a ground to declare emergency? So, before moving to emergency, first of all, we have to understand what is epidemic. Epidemic, in simple means, a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time. एपिडेमिक को सरल शब्दों में महामारी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी समुदाय में एक विशेष समय में जो एक संक्रामक बीमारी फैलती है उसको महामारी कहा जाता है। और इस महामारी से बचने के लिए हमारे देश ने एक कानून भी पास कर रखा है जिसका नाम है द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, and it was first enacted to tackle bubonic plague in Mumbai. The law is meant for containment of epidemics by providing special powers that are required for the implementation of containment measures to control the spread of the disease. इसे पहली बार पूर्व ब्रिटिश भारत में मुंबई में प्लेग से निपटने के लिए लागू किया गया था। इस महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी इस कानून के तहत, और इसमें 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 कहता है power to take special measures and prescribe regulation as to dangerous epidemic disease. In this section, if the state government is satisfied that the state or any part is threatened with or outbreak of any dangerous epidemic disease, then the government may take special measures and prescribe regulation for it. महामारी रोग के विशेष उपाय और नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है ये सेक्शन। सेक्शन 2A जो है, इट डील्स विद द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो मे टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी शिप और डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन इंटेंडिंग टू सेल. तो धारा 2A कहती है कि केंद्र सरकार भी किसी जहाज के निरीक्षण के लिए उपाय कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है. सेक्शन 3 डील्स विद द पेनल्टी प्रोविजंस. इन दिस वी हैव कि इफ एनी पर्सन डिसोबे एनी रेगुलेशन देन he or she shall be punishable under section 188 of IPC.
On 22nd April 2020, the Epidemic Disease Amendment Ordinance has been passed, and it add provision to punish those attack on doctors or health workers. And 7 years imprisonment has also been given if anybody has fined attacking doctor or health workers, and such type of case should be resolved in 1 year. And if a person is found guilty, then he have to pay twice the market value of damaged property as compensation for damaging any assets of health workers. Now we have discussed this about the epidemic, what is mean by it, and what are the legal provision regarding it. Now, to understand it can be a ground of emergency or not, we have to understand what is emergency. Emergency, आपातकालीन प्रावधान. Emergency provisions has been contained in Part 18 of Indian Constitution, and it is considered as a unique feature of Constitution, and it can be imposed by President. Emergency give center wide powers. Center can take full legislative and executive control of any state, and it also allow the center to curtail or suspend freedom of the citizens. आपातकालीन प्रावधान में केंद्र की शक्तियां को व्यापक बना दिया. केंद्र को राज्य का पूर्ण विधायी और कार्यकारी नियंत्रण ले सकता है. आपातकालीन प्रावधान में केंद्र नागरिकों की स्वतंत्रता को कम या निलंबित कर सकता है. And the emergency provisions has been borrowed from Germany Constitution. Now there are 3 types of emergency that has been mentioned from Article 352 to 60. So first of all, we will deal with the national emergency that is described in Article 352. This article deals with emergency proclaimed on war, external aggression, and internal disturbance. Indira Gandhi invocation of internal disturbance as a ground to impose emergency on 25th June 1975. So according to 44th Amendment, internal disturbance has been substituted with armed rebellion. आर्टिकल 352 जो है वो इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद जो है उसमें कब इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, जब कहीं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह. 44th अमेंडमेंट से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, जिसका इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया था टू डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन 25th जून 1975. तो जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया आर्म्ड रेबेलियन से, मतलब सशस्त्र विद्रोह से. दिस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये तब की जाती है जब मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश करके उनके पास भेजता है. देन ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, and it should be approved by both the houses of parliament, and it should be approved within 1 month. 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन
होना चाहिए. The proclamation should be passed by both the houses within 1 month. और ये प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू रहता है 6 मंथ तक. प्रेसिडेंट जो है वो रिवोक कर सकता है इस इमरजेंसी को कभी भी, उसके पास ये पावर होता है. और अगर 6 मंथ के आगे इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, इफ़ दे वांट द फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ इट, देन अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस इज़ रिक्वायर्ड. तो अगर इसको फर्दर पीरियड के लिए कंटिन्यू करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेंबर्स, हाउस मेंबर्स की इसके लिए ज़रूरी होती है. अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हो चुका है. पहला कब? 1962 को, चाइनीज़ एग्रेशन के टाइम. देन वी हैव 1971 इंडो पाक वार, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के टाइम. और 1975 जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड इमरजेंसी, that is also called as state emergency, and that is referred in Article 356. In this, President can proclaim emergency on account of failure of constitutional machinery in state, and the President can declare on governor report or himself. राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या खुद संतुष्ट होता है. तो राज्य सरकार, अगर उसे लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती है, तो वो उस राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. या तो गवर्नर की रिपोर्ट पे करेगा, या उसे खुद को अगर ये एहसास हो कि वहाँ पे सरकार संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ. और 2 माह के अंदर दोनों सदनों के द्वारा ये प्रोक्लेमेशन पारित होना चाहिए. और ये कंटिन्यू 6 महीने तक रह सकता है. और इसको रिवोक और एक्सटेंड प्रेसिडेंट कर सकता है. Now we will move to another that is called as financial emergency, that is referred in Article 360. This emergency can be proclaimed by President on account of financial stability. ये आपातकालीन की घोषणा जब अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि वित्तीय आपदा आ गई है, तो वो इस तरह की घोषणा कर सकता है. और इसमें भी प्रोक्लेमेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ. 2 महीनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा ये पास होना चाहिए. और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सैलरीज एंड अलाउंसेस का भी रिडक्शन पॉसिबल है. ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. तो अब हमने डिस्कस किया कि इमरजेंसी इतनी तरह की होती है और इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. तो कहीं भी एपिडेमिक कोई कारण नहीं है अभी तक टू डिक्लेयर इमरजेंसी. So now we understood this, the epidemic can't be a ground to create or to declare an emergency. I hope you like this video.